सोच रहे हो, कोई मेमोरी याद करो जो आप दोनों के साथ में खुशी के साथ बीती हो या साथ में खुश थे। टेक डीप ब्रेथ और धीरे से छोड़ो। Let's okay, let's wait for all the rest of the people to join. Yeah. Hello, Sophie. How you been doing? Hello, Sophie. Do you have any questions, Sophie? I'm here to reply you. Sophie, do you have any questions? Please let me know. चलिए मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताती हूँ। एक सिचुएशन में मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही थी। एक कनेक्शन था, नॉर्मल नहीं था। ये कोई कैजुअल या रैंडम बॉन्डिंग भी नहीं थी।
ऐसा हुआ था कि एक जस्ट 2 days बैक का ही लाइव कनेक्शन में था. So someone asked me about their love life, how is it going? And it's been many years they are in, what you say, long distance relationship. So she just wanted to know how is it going and all. So yes, she got a very good card, and most probably within a few days or months he'll come back to her, and she was happy with this. So sometimes patience also works. So I would say that we should always keep on waiting, and if our intuitions are saying so, so wait for the person. If you feel like yes, you can wait and you can go ahead with him for lifelong. So tarot cards, tarot readings will give you a proper insight of this, whether you should wait for this person, whether you should wait for any particular thing. They give you a proper intuitions with your future predictions. So you can always trust these cards. These cards will actually give you an oversight or insight of what might happen, what can be done. It gives you a rough picture of your future. Yeah. Hello, Kalpana. I'm here to read your love life. If you want to ask anything, I'll just answer you back with it, what insight it might give you. So if you have any question, you can just drop down with your date of birth. So I was just talking about let's do a simple meditation for a minute, and then think of a person and a question. Let's see what we get. Yeah. So I'll start. Close your eyes and just think of the person and what question you want to know about that person. Just think of it. Yeah. Close your eyes and think about it. Uh, Let me know about the person. Yeah. Okay. Let's see. Oh, can you see it? I got a very good card. I just thought about my husband and I got a family card. Nice. So we are going to have a good bonding. Oh, that's so sweet. And Valentine week is going on. Nice card I have got. You guys have any question? You can ask me. किसी को कोई क्वेश्चन है अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ पूछना है
आप लोग मुझे पूछ सकते हो एंड आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि आपका परफेक्ट आंसर आए, प्रिडिक्शन आए. या सो एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Let's pick one card and let's see what it's going to say to us. Oh, okay. I got a break. Some third person is going to come in one of the reading, and someone is going to have a third person. I won't reveal the name, but there is a triangle, love triangle. Yes, एक का हार्ट ब्रेक होगा और दूसरा बाजी जीत जाएगा. लव रीडिंग्स में यही होता है. Either it comes to your way, otherwise it directly goes opposite. किसी को कोई भी हो क्वेश्चन, मुझे पूछ सकते हो. आई एम हियर टू आंसर यू. Let's pick one card and read about it. Okay. ये कार्ड ये प्रिडिक्ट करता है कि जिसके अभी है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी जो है वो अच्छी है, बट इट्स कॉन्फ्लिक्टेड, मीन्स कन्फ्यूजन में है. मिक्स फीलिंग्स आ रही है उसकी. एक साइड पर वो आपको मिस करता है और दूसरी साइड पे अगेन वो किसी टेंशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फियर से कंप्लीटली 100% आपको टाइम नहीं दे पाएगा. सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि लव लाइफ चूज़ किया जाए कि द अदर वन, बिजनेस और करियर. सो कंफ्यूज, एंड ये कंफ्यूजन का कार्ड है. लेट्स सी सम अदर कार्ड. Okay, I got a good card, Queen card, or whoever is going to, the person for whom I was reading this, she'll be treated like a queen. Yeah. So nice. बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा उसे एंड क्वीन की तरह रखेंगे. पैसा भी है, सब कुछ है. ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वॉट एवर शी इज़ लुकिंग फॉर, शी विल बी गेटिंग इट. उसको सब कुछ मिलेगा उसके लवर के पास से या हस्बैंड के पास से. एनी वन हुएवर शी इज़ लविंग फ्रॉम द हार्ट. यस, नाइस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड था ये. हेलो वसीम. या आपका क्वेश्चन ये है कि फैज़ल रशीला से कांटेक्ट कब करेगा. ओके, लेट मी सी.
Okay, Wasim, I'm looking for your card. 1992 10. Okay, card says contact hoga. In fact, they are together only. This card says that they are together only, and 10 months, maximum 10 months it's going to take maximum. Okay, the card says that maximum 10 months में हो जाएगा. So, Faisal, I think so. They are in contact. Yes. But this card says that they are in contact. Yes. So I have seen for Faisal, they are in there and 10 months it together mein hai. So maybe I'll just see. I'll look for another card. Let's see. No, they are still together. Yes, they are together and divorce हो गया है, but they are still, hearts are connected. I'm getting this card. Hearts are connected still. Sony, let me know your birth date. सोनी, मुझे आपका बर्थ डेट बताइए और मैं आपका प्रेडिक्ट करती हूँ. हाँ सोनी, आपका प्यार वापस आएगा कि नहीं, आप मुझे आपका बर्थ डेट बताइए, मैं आप प्रेडिक्ट कर लेती हूँ. एंड रानी ऑल्सो, you can actually give me your date of birth. Rani, give me your date of birth. I'll just check whether when your soulmate will be back. ओके, सोनी का आ गया है 9th अप्रैल. ओके, लेट्स सी. ओके, आएगा बट कंफ्यूजन में है अभी तक. ही हैज़ टू थिंग्स इन हिज हैंड्स. सोनी, बीवेयर. हाँ, he has two things in his hand, holding two things. Okay, so he is still confused कि कौन से को पिक किया जाए. Okay, so yeah, two things are there in his hand. Sony, yeah. Hmm. रानी, I want your card. अच्छा सोनी, मैंने ये कहा कि उसके हाथ में दो ऑप्शंस है, वो कंफ्यूजन में है कि कौन सा लिया जाए, कौन सा पिक किया जाए. सो बीवेयर. हाँ, थोड़ा ध्यान संभल के रहना. और को अगर आपका दिल कहता है कि जा सकते हो तो कांटेक्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि उसके हाथ में दो है. ही इज़ कंफ्यूज्ड बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन. So Sony, take care. Huh? Cards are predicting confusion. अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए. या, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू ग्रो. ओह, उसने शादी कर दी है. ओके. सो दैट्स व्हाट आई सेड ना, वही मैंने कहा, उसके हाथ में दो ऑप्शन थे, तो आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल. Any other questions? Anyone?
यस, चलो हम देखते हैं किसी की रीडिंग। लेट्स सी। एक सिचुएशन लेते हैं। शादी हो गई है एंड इट्स बीन लेट्स से एग्जाम्पल 5 years। देखते हैं उनकी लव लाइफ कैसी होगी। ओके। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बर्डन ऑफ रिलेशनशिप्स। बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है रिलेशनशिप्स में। बहुत सारे रिलेशंस है जो उसे एक सॉल्व करता नहीं है प्रॉब्लम तो दूसरा शुरू हो जाता है। सो लव लाइफ इज समवेयर इग्नोरेंस आ रहा है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज इतने सारे दूसरे चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही है उसको, चाहे मम्मी पापा का हो या कोई भी। सो समटाइम्स कार्ड सेज व्हाई, व्हेन, व्हाट कैन हैपन। यस। ओके सोनी, आई टेक वन मोर कार्ड। क्वेश्चन क्या है मुझे कहना। क्वेश्चन क्या है सोनी मुझे कहना, मैं एक और एक कार्ड आपका ले लूँगी। और अगर आपको और जानना हो डिटेल में तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग्स भी कर लूँगी विथ रेमेडीज एंड ऑल। अच्छा, आपको देखना है कि वो, अच्छा उसके लिए ना मुझे उनका बर्थ डेट चाहिएगा। एंड ये जो मैं करूँगी प्रिडिक्शन, ये 50% ही सही हो सकता है। ओके, नॉट कम्प्लीटली, 50% सही हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग मैं कोई थर्ड पर्सन की करूँगी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ओके, बट फिर भी मैं करूँगी। आप मुझे भेजना उसका डेट ऑफ बर्थ। 50% ही सही हो सकता है, क्योंकि जिस पर्सन की हम रीडिंग करते हैं ना, वो जितना हमारे सामने हो उसके परमिशन से करते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी मैं आपके लिए करूँगी, आप मुझे बताइए। 10 जनवरी, ईयर, ईयर कौन से साल में बॉर्न हुआ था? 2000। ओके, आकाश राइट। इज हैप्पी, ये खुश है। आई थिंक सो कोई फ्रेंड ही है, उनके साथ ही उनकी शादी हुई है। ही इज़ हैप्पी देयर एंड सही कहा मैंने क्या? उसकी फ्रेंड ही थी आकाश की, जिसके साथ उसकी शादी हुई है और हैप्पी है। नाइस, ही इज़ हैप्पी इन हिज मैरिज लाइफ। सो टैरो कार्ड्स आपको प्रिडिक्शन देते हैं। आपके जो प्रिडिक्शंस होते हैं काफ़ी सही होते हैं हद तक। इसमें जो टैरो रीड कर रहा है उसकी एनर्जी और जो जिस पर्सन की करते हैं उसकी एनर्जी के साथ ये टैरो कार्ड्स रीड किए जाते हैं। सो ओके फ्रेंड, ओके, so nice, but he's really happy. He was confused between you two person and he has chosen the person and he's happy. Currently he's happy. Cards are saying that he's happy. तो वो खुश है। तो उसके दो ऑप्शंस थे, दोनों में से उसने जो चूज़ किया शादी की, उस वहाँ पे वो खुश है। यस सोनी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया।
वेलकम सोनी, आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, दैट विल बी प्लेजर फॉर मी। एनीथिंग, कुछ भी रीडिंग करनी हो, आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट चाहिए पर्सनलाइज्ड, कहाँ पे आपका क्या मंथ, कौन सा ईयर सबसे बेस्ट रहेगा सोलमेट के लिए, या फिर एनी अदर रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी एट टैरो रीडिंग विल गिव यू द परफेक्ट आंसर फॉर इट। या वेलकम सोनी, एनी टाइम। मोस्टली मैं ये टाइम पे आऊँगी लाइव पे, एवरी डे नहीं तो ऑल्टरनेटिव डेज पे ये टाइम पे तो मैं रहूँगी। सो एनी अदर टाइम यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट आज सिर्फ लव रीडिंग है। नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक होगी, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। ओह ओके, बट फ्रेंड्स थे कि अनजान और ऐसे रैंडमली किसी से मिले और शादी को, जैसे अरेंज मैरिज हो, ऐसा कुछ था कि फ्रेंड्स थे और फिर शादी हुई? आई वांट टू नो बिकॉज कार्ड्स आर सेइंग दैट फ्रेंड्स थे। मुझे सोनी, मुझे जानना था कि ये दोनों फ्रेंड्स थे, दोस्त थे पहले, या फिर अनजान अरेंज मैरिज हुई है इन दोनों की, ताकि, क्योंकि कार्ड्स बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं। चलो एक रीडिंग करते हैं। लेट्स सी सिचुएशन, लड़का करियर और लव के बीच में उसको चूज करना हो तो क्या चूज करेगा? लेट्स सी। ओके, करियर और लव के बीच में अगर उसको चूज करना होगा तो मोस्टली ये करियर चूज करेगा। हाँ क्योंकि करियर नहीं होगा तो लव लाइफ का भी क्या करेगा वो, आगे बढ़ना पड़ेगा ना। लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, मीन्स वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमें अंदर से थका देते हैं। लाइक इन दिस कार्ड इट सेज दैट ही इज कंप्लीटली, क्या कहते हैं, वो अंदर से मीन्स स्ट्रॉन्ग बनने की कर रहा है बाहर से, बट अंदर से ना बहुत थक गया है। क्या करना, क्या कर सकता है, करियर है, फिनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो टैकल करने हैं। सो समटाइम्स द पर्सन ना, उसे देखना पड़ता है कि क्या बेटर रहेगा, तब टैरो कार्ड की जो रीडिंग्स आती है वो बहुत हद तक है ना उसको सपोर्ट कर लेती हैं। और कई बार देखा गया है कि बहुत अच्छे से उनका है ना फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं आफ्टर डूइंग व्हाट द टैरो कार्ड सेज। तो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट टैरो कार्ड सेज यू कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि कुछ भी होना हो, गलत होना हो तो क्या, कब आएगा, कुछ भी अच्छा होना हो तो कैसा होगा, किस तरह से होगा, कैसे आप वो कर सकते हो, ये सब चीज़ों का आंसर टैरो रीडिंग में है।
और न्यूमरोलॉजी में आप देख सकते हो कि आपका जो जन्म हुआ है वो आपका फ्यूचर कैसा बनाएगा, और कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ पे आप अच्छा कुछ कर सकते हो। तो फिर उनको रेक्टिफाई करने के लिए ना, जो जहाँ पे हमें पता है कि ये साल आपका अच्छा जाने वाला है और टैरो रीडिंग से आपको पता चल जाए कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उसको आप कैसे पॉजिटिव वे में ले सको, ये सब चीज़ें रेमेडीज़ में होती है। और ये दोनों मिला के टैरो कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी से आपको काफ़ी आने वाले फ्यूचर का प्रिडिक्शन मिल जाता है, रफ आइडिया आ जाती है कि ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ आगे चल के, तो उसको मैं पहले से ही सही कर लूँ। जो उसका इफ़ेक्ट होगा 100%, उससे मेरा इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। और अगर अच्छा होने वाला है तो उसको और आप अच्छा कर सकते हो। कई बार कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमास होते हैं, पास्ट इश्यूज होते हैं, जहाँ पे हमें देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तब हम उस इंसान को बोलते हैं कि आप थोड़ा अभी धीमे से चलो, साइलेंस में रहो, ताकि वो पहले सेटल हो जाए। सब कुछ जब थम जाए फिर आप सोचो और आगे बढ़ो, और तब टैरो रीडिंग करो और करवाओ। देखो कि कहाँ पे अच्छा हो सकता है, अभी किस तरह से आप करोगे तो अच्छा हो सकता है, तो वो टैरो कार्ड्स आपको क्लियरली बता देंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आपके फ्यूचर में अभी आप इस तरह से करो। चलो एक मैसेज कार्ड उतारते हैं। ओके, आई गॉट अ पर्सन सिटिंग ऑन अ थ्रोन एंड ये बता रहा है हेड है, और ये जो भी डिसीजन लेता है इट्स लाइक अ कमांड, हर कोई फॉलो करता है। लव लाइफ के बारे में, अगर लव लाइन के बारे में बोला जाए आज, तो ये कार्ड ये बताता है कि यस, सोचते हैं, काफ़ी बार ये पर्सन सोचता है किस तरह से हो रहा है, कैसे मुझे वो याद आती है, सब कुछ ये कार्ड बताता है कि लव कांट बी इग्नोर्ड, लव को भुलाया नहीं जा सकता। और समटाइम्स जब हम अकेले बैठे होते हैं तो वो मेमोरीज फिर से याद आ जाती है। ओके, आई गॉट अ न्यू सब्सक्राइबर। मनीष की करंट फीलिंग्स निमिषा के लिए। मनीष, मुझे आपका बर्थ डेट दीजिए एंड वेयर डू यू स्टे, प्लेस। आई विल, मैं आपकी ब्लॉक्ड सिचुएशन जो है उसके बारे में मैं बता दूंगी। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ दीजिए और प्लेस दीजिए, आप कहाँ रहते हो।
मनीष आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं आपके जो सिचुएशन है उसके बारे में कह सकती हूँ, प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। Let me shuffle my cards once again. तब तक मनीष आप आपके ओके 22 June 1994. Okay, let's see. Manish 22 June. ओके, ब्लॉक्ड सिचुएशन ही है मनीष, can't go, can't do anything, it's blocked. Yes, she is Nimisha won't respond you back. आपको अभी आपके आगे जाना पड़ेगा. You have to live this लव लाइफ ऑफ निमिषा. यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा उससे, क्योंकि ये कार्ड नहीं, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक ही है. आप देखोगे इट्स कम्प्लीटली ब्लॉक एंड शी इज़ ऑलरेडी गोइंग विथ सम अदर इन द फ्यूचर. मीन्स उसकी इच्छा से नहीं है, बट उसको कहीं और जाना पड़ेगा. तो आपको उसको आप है ना उसको अपने दिमाग से निकाल देना सूनर, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप उसी को आपके दिमाग में रखोगे तो. या थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट. या इफ यू लाइक द प्रिडिक्शन, सी इट, दिस कार्ड इज सेइंग दैट. so प्लीज कम ओवर इट मनीष, यू नीड टू कम ओवर इट. हाँ, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपके पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लेगा ये चीज़. सो आपके लिए अच्छा नहीं होगा फिर. So I'm waiting for someone else. So what do you think, Manish? सही है? आपको क्या लगता है, सही है? कि क्योंकि कार्ड बता रहा है कि उसको कहीं से प्रेशर आ रहा है, मे बी पेरेंट्स का कहीं और प्रेशर है, कुछ तो है. हाँ, मनीष का ही मैंने पूछा था कि मनीष शुड नॉट थिंक ऑफ निमिषा. हाँ, क्योंकि निमिषा को शी इज़ नॉट विलिंगली, बट उसको प्रेशर आ रहा है एंड शी हैज़ टू थिंक ऑफ समवन एल्स. और मनीष को ओवरकम करना पड़ेगा इस चीज़ को, और किसी और चीज़ में ध्यान डालना पड़ेगा, नहीं तो ये उसके दिमाग को इफ़ेक्ट करेगा. अगर ये उसी सोच में रहा कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, then it will be harmful for his brain. Cards are saying that. नहीं, but cards are saying this. I got that thing कि Hi Nimisha, yeah, but I saw for Manish, and Manish should overcome you indirectly. Directly I'm saying you that दोनों का मेल नहीं हो सकता, and Manish should overcome you. You should go with someone else. और अगर जा रहे हो साथ में,
तो फिर आई वुड जस्ट से कि उसको हावी मत होने देना इस चीज़ से, नहीं तो उसको दिमाग को बहुत इफ़ेक्ट करेगा। Because चलो, my 1 hour is going to get over. कोई न्यू सब्सक्राइबर्स या कोई न्यू किसी के क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए। I'll be coming back the same day, sorry, the same time. कल भी यही टाइम पे मैं आऊँगी, या तो फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं आऊँगी, बट आज जैसे लव रीडिंग थी, कल कुछ और रीडिंग होगी। इट कैन बी कैरियर, इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट जस्ट नॉट लव, एनी रिलेशनशिप्स और बिजनेस, anything, any topic, new topic will be coming up every day. Not every day, then at least alternative days तो मैं आऊँगी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, जाने से पहले लेट मी रीड वन, दिस इज़ फॉर one of my cousin, and she asked me recently, she asked me a question. डिवोर्स हो गया है एंड शी इज़ सिंगल, शी इज़ वर्किंग, शी वॉन्ट्स टू नो कि उसकी लाइफ में ओके सोलमेट कब आएगा, सेकेंड मैरिज कब होगी, लेट्स सी। आएगा, बट it's like 15 months it's going to take, but life won't be that easy for her even in the second marriage. पार्टनर मिलेगा, दोनों will be bonded with love, but external चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स रहेगी लाइफ में, अदरवाइज लव लाइफ विल बी गुड।
अगर आपको लगा ये मैसेज और ये आज की जो मैंने रीडिंग्स की है अच्छी लगी हो, कहीं पे कनेक्ट किया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फ्यूचर की रीडिंग्स में ज़रूर आना. विल हैव अ गुड टैरो सेशंस इन द कमिंग फ्यूचर. किसी को न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट चाहिए है एंड न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स ऑल्सो आई डू, so you can always contact me. I'm just typing my number. Hi Divya. Okay, I was about to leave. Yes Divya, please tell me. किसी को टैरो सेशंस या पर्सनलाइज टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स, न्यूमरोलॉजी सेशंस चाहिए, तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी. आई हैव टाइप माई नंबर. Divya, I'm not getting it. What you typed? चारगिरी फीलिंग्स फॉर दिव्या मैरिज कब तक होगी मीन्स आई एम नॉट गेटिंग इट. ओके गिरधर इज योर लव एंड आपको जानना है कि उसकी फीलिंग्स. ओके, आपके लिए मुझे ना आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए. ओके, 17/12/1993. ओके दिव्या, मुझे पहली बात तो आप ये बताइए कि दोनों में थोड़ा ईगो इश्यूज है क्या? मीन्स एक दूसरे की बात काटते रहते हो आप? ओके, क्योंकि कार्ड सेज दैट दोनों भी एक दूसरे के सामने आप बातें काटते रहते हो. फीलिंग्स तो क्या कहते हैं हम, नॉट गुड बट ओके है, इतनी भी अच्छी फीलिंग्स नहीं है. क्योंकि क्या हो रहा है कि फीलिंग्स अच्छी भी है ना तो वो सो गई है. क्योंकि जो आप दोनों एक दूसरे से खट्टी मीठी बातें जो कर रहे हो, मीन्स बहुत एक दूसरे की काटने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है. उससे क्या हो गया है कि लव लाइफ है ना पीछे रह गई है, पीछे छूट गई है. तो थोड़ा आई वुड से कि आप थोड़ा साइलेंट रहो और लेट्स सी, अगर आप थोड़ा सा धीमे रहोगे तो आपका अच्छा हो सकता है. द लव विल ब्लूम आफ्टर दैट. और आपके जो झगड़े हो रहे हैं ना दोनों के बीच में, उसकी वजह से ना तीसरा इंसान है ना बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा है. तो वो भी आप देख लीजिए. ओके, तो बंद कीजिए आप झगड़े, तो आपकी लव लाइफ विल बी गुड. राइट नाउ इट्स फीलिंग्स आर ओके ओके. मीन्स वो क्या कहते हैं, ठंडी पड़ी हुई है फीलिंग्स, क्योंकि आप उससे ही उभर नहीं पा रहे हो, तो फीलिंग्स तो दूर की बात. ओके,
ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सो मे बी दैट पर्सन, बट थर्ड पर्सन मज़े ले रहा है इसकी वजह से, सो ट्राई नॉट टू डू दिस। थोड़ा पेशेंस रहेगा ना, थोड़ा आप साइलेंट हो जाओगे ना, तो वो अपने आप ब्लूम करेगा आपकी लव लाइफ। या ओके, मोहिनी, टुडे आई एम डूइंग ओनली लव रीडिंग। आज कल वैलेंटाइन डे के हिसाब से मैंने सिर्फ लव रीडिंग कर रही हूँ मैं। लव रिलेटेड एनी क्वेश्चंस, नो, आई विल सॉल्व इट। करियर related questions will be coming up very soon. Okay, Divya, I'll just see, okay, what, how many months or what feelings you have for him, okay? Nice feelings, you have very nice feeling. Is it दिव्या कि ये अभी अभी मीन्स एक एक ही साल का लव स्टार्ट हुआ है या क्रश स्टार्ट हुआ है आपके और गिरिधर के बीच में? बिकॉज इट सेज इट्स फ्रेश, मीन्स बहुत फ्रेश लव है आपका अभी। ठीक होगी, बहुत ठीक होगी। अगर आप साइलेंट रहोगे ना, इट्स गोइंग टू शाइन। सी, यू डू यू सी दिस, इट्स गोइंग टू शाइन। अगर आप अच्छे से, अगर अगर आप अभी फ्यूचर में करोगे साइलेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तो इट इज़ गोइंग टू ब्लूम। सी, यू कैन सी ब्लूम फ्लावर्स एंड इट्स गोइंग टू शाइन। नई नई नया नया प्यार है आपका, तो अगर अच्छे से चला तो बहुत अच्छा चलेगा। No, Divya, yes, 5 years also it's fine, but it is going to be a good one. It's your feelings towards Giridhar is very nice. You're giving your 100%. Yeah. Okay, Mohini, I'll just see yours. Okay. Hmm. Okay, आपका रिलेशनशिप ना, आई फील दैट इट इज़ नॉट रूल्ड बाय यू बोथ। कोई है जो मीन्स, जैसे मम्मी का ज़्यादा चल रहा है इफेक्ट या पप्पा का ज़्यादा चल रहा है, वैसा है। मीन्स आप दोनों का है ना, रिलेशनशिप को कोई और ही चला रहा है, वैसा है। तो इसमें ये तो मैं अभी क्या कहूँ आपको, both are good, you both are very down to earth, very silent, you both are meant for each other, but आपकी जो है ना डोरी जो पकड़ी हुई है ना, वो किसी और के हाथ में है, जो गाइड कर रहा है आपको कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब पूरा गाइडेंस चल रहा है, मीन्स लव के रिलेटेड ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ दैट ना, आपके पास अच्छा है, आप शादी में बहुत खुश हो, बट क्या है कि एक चीज़ है जो इंडिपेंडेंस नहीं है किसी चीज़ का इसमें, तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करती है। बट नहीं, फिर भी आप दोनों बहुत क्लोज हो, बेटर, इवन दो देर इज़ लॉट्स ऑफ इंटरफियरेंस, बेटर है, बट इंटरफियरेंस है। ये चीज़ है कि आपके डिसीजंस आपके नहीं होते, आप दोनों के नहीं होते, ये पूरा आपका किसी और से हो रहा है। सो मैं तो यही बोलूँगी कि दोनों एक दूसरे के बने हुए हो मोहिनी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम सीइंग एनी कार्ड ना, तो उस टाइम मैं आपको, आप आ जाना, मैं फिर से कार्ड उठाऊंगी रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स का, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या रेमेडीज़ ले सकते हो, तो उससे आप
इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो. बट लव लाइफ इज गुड, बोथ आर गुड विथ ईच अदर. कब तक ठीक होगा, ये वही मैं बोल रही हूँ ना, मैं नेक्स्ट टाइम जब करियर रीडिंग करूँगी, रिलेशनशिप की रीडिंग करूँगी, तब आप आ जाइए. और उस टाइम रिलेशनशिप्स किसके साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूँगी, तो रेमेडीज़ भी मिल सकती है. या और अगर पर्सनलाइज चाहिए तो मैंने चैट में दिया हुआ है मेरा नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो. या बच्चे होने के बाद एंड ऑल आई नीड टू चेक दोज, ओके, इन डिटेल. करंटली आई हैव यश शर्मा वेटिंग. या सो यश, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए. ओके, यू हैव गिवन मी 1 जुलाई 2004. आपका क्वेश्चन क्या है? वेलकम मोहिनी, नेक्स्ट टाइम आ जाइए. ओके, विल डू अ प्रॉपर रीडिंग फॉर यू इन डेप्थ. ओके यश, आई जस्ट सी. हाँ, नो यश, आपका और तनिषा का रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि शी इज़ बीइंग ट्रीटेड वेरी नाइसली. ये जहाँ पे भी तनिषा आगे गई है, शी इज़ ट्रीटेड वेरी नाइसली. सो आई डोंट थिंक सो शील कम बैक इन द नियर फ्यूचर. सो टैरो रीडिंग आपको प्रिडिक्शन देता है कि किस तरह से आगे हो सकता है, बट यस, शी इज़ ट्रीटिंग, शी इज़ बीइंग ट्रीटेड वेरी वेल. हाँ, she won't come back, huh? Yes, card is clearly saying this. She won't come back. She was there with you for, I think so, long time. Uh, More than, I say, 5 years. नहीं नहीं, नहीं हो सकता. She has left you. According to the cards, it says that. See, my card says it's 8 months. 8 months से वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है. शी इज गॉन. 8 months आगे. नहीं, you guys are in contact with more than 5 years. She won't come back. Yes, so you can actually go ahead. But she is now moved on, so even you can move. She won't come back. See, she's going away from you.
बट उसकी फीलिंग्स नहीं थी यश, दिस इज क्लियर कि उसकी इतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं थी आपके प्रति. इट वॉज एन इल्यूशन फॉर यू. मीन्स आपको वो लगता था कि वो मुझे उसकी फीलिंग्स है मेरे प्रति, बट वो आपको लगता था एक इल्यूशन में थे आप. शी वॉज नेवर विथ यू. शी इज़ मूव्ड ऑन. शी इज़ गॉन. सो आई विल बी सेइंग अ गुड बाय नाउ. अगर किसी को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड रेसोनेट कर रही हो कि अपनी लव लाइफ के बारे में. हाँ, ओके. नो, वो बात कर रही होगी जस्ट टू टॉक टू समवन. वो कहते हैं ना कि बात करने के लिए कोई बंदा चाहिए था, और वो आपसे बात करती थी, बट उसकी तरफ से कोई लव इशारा नहीं था. इट वॉज जस्ट अ टाइम पास एंड शी वॉज नेवर फॉर दिस. ये आपका इल्यूशन था, आपका भ्रम था. तो ये क्लियर है कि उसकी तरफ से नहीं था, आप ही का इल्यूशन था, भ्रम था. Okay, future reading, no यश, आई एम नॉट डूइंग इट टुडे. टुडे इज ओनली लव. सो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आज हम सिर्फ लव के बारे में बात करेंगे. एनी लव रीडिंग, एनीथिंग लाइक दैट, आई विल बी टॉकिंग. एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. मेरा नंबर मैं फिर से टाइप कर लेती हूँ. सो आई डू पर्सनल टैरो रीडिंग ऑल्सो, और न्यूमरोलॉजी भी एक्सपर्ट हूँ मैं. So you can contact me on this number. Okay. So I will say a goodbye now. Okay. अगर रेसोनेट हुआ आपकी लव रीडिंग्स के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड फॉर फ्यूचर live tarot sessions and live readings for yourself, आइएगा लाइव सेशंस पे एंड पूछिएगा, एंड आई विल बी देयर टू आंसर यू गाइस. ओके. नो, आई एम नॉट डूइंग एनी करियर रीडिंग टुडे. सॉरी. करियर रीडिंग्स विल बी कमिंग आफ्टर 15th. सो मोस्टली ऑन संडे करियर रीडिंग्स हो सकती है. ओके. सो बाय. Take care. Have a nice time. Love you all. Bye.